तो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज में है एनी हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। कार्स एंड बसेस गिव्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज pollution. We need clean air for life. Dead plants and animals are biodegradable. Planting trees is the best way to reduce air pollution. Pollution is mainly caused by people. The main cause of air pollution is burning fuel. Which of the following are non-biodegradable material? Plastic is non-biodegradable material, यानी जो कि डिग्रेड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता. Which of the following produce harmful gases? Motor vehicles produce harmful gases. Which of the following things are biodegradable? Dead plants are easily to degrade. ओके जी, तो चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास है मैटर एंड चेंजेस इट्स स्टेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉइस्चर इज टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। इन सॉलिड molecules are closely packed. Liquid adopt the shape of the container. State of matter which has definite shape and volume is called solid. It fills all the space available. Gas. Change of state from liquid to solid is freezing. In water cycle, the sun plays an important role in evaporation. The attractive force between molecules is stronger in solid. Columns. Water drop. Moisture settles on plant is called dew. Thick cloud at low height is called fog. Boiling point of water obviously 100 degree centigrade. Melting point of water is 0 degree centigrade. Chapter number 6 Forces and Machines. तो इसमें आपने ये लीवर ऑफ क्लास 1 इसको देख लेना है। इसमें फॉल्कोरम जो होता है वो मिड में होता है, एफर्ट और लोअर साइड पे होती हैं। ये कुछ एग्जांपल है, ये आप लोग पढ़ लें, ठीक है। क्लास 2 लीवर जो है उसमें लोड मिड में होता है, फॉल्कोरम और एफर्ट एंड में होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप देख लें। इसी तरह जो क्लास 3 लीवर है उसमें एफर्ट मिड में होता है और फल्कोरम और लोड एंड में होते हैं। तो इनकी भी एग्जांपल आप रीड आउट कर लें। आ जाते हैं कॉलम की तरफ। द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट हैज इज कॉल्ड मास, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन जो हमारे पास है वो है लेडर। सेकेंड क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर हमारे पास बोतल ओपनर है। स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी हमारे पास डॉल्फिन की होती है। इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बैलेंस फोर्स। मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रैक्शन, लुब्रिकेशन के साथ। सिंपल मशीन एक्स। Choose the correct option. Unit of force and SI is Newton. Ball bearing reduce friction because they roll on surface to reduce friction. Option B. A sharpener is an example of lever. Option A. The quantity of matter present in an object is its mass. Option C. Tendency of all object and matter in the universe resist any change in its state of rest or of uniform motion is called inertia. Fill in the blanks. Gravitational force is responsible for falling of object on earth. Device which make our work easier are called lever. Friction is
a force that oppose motion. The claw hammer is an example of first class lever. There will be no motion if the forces are balanced. Chapter number 7, Properties and Behavior of Light. तो इसमें इंट्रोडक्शन से मैंने एक पिक्चर ली है, लुमिनस और नॉन लुमिनस को आपने पढ़ लेना है, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट उनको पढ़ लेना है, नॉन लुमिनस कैसे कहते हैं ऑलरेडी यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है। अच्छा, सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण कब होता है? जब मून अर्थ और सन के मिड में आ जाए, ठीक है। और इसी तरह लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब आपके पास यानी चांद ग्रहण कब होता है? जब आपके पास अर्थ जो है वो मिड में आ जाए सन और मून के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉज कर लें वीडियो और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। मून की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये भी आ सकती हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द डैश is the largest natural source of light. Option C, sun. Such object which emit light are called luminous object. जो कि खुद लाइट यानी प्रोवाइड करते हैं, रोशनी देते हैं, वो luminous object हैं, जैसे कि सन हमारे पास है। If you cannot see through an object, then the object is called opaque. तो ओपेक एक जिस तरह लकड़ी वगैरह है, ठीक है, इससे हम दूसरी साइड पे नहीं देख सकते हैं। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो सफ़र करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट करती है। लाइट ऑफ द सन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मून, यानी मून की तो अपनी रोशनी होती नहीं है, तो हमको रात को चाँद नज़र आता है उसकी रोशनी एक्चुअली सन की होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पे पड़ती है। इसी तरह कॉलम है हमारे पास ट्रांसलूसेंट, ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी नीम शफाफ, वो ऑब्जेक्ट जो पार्शल लाइट पासेस करते हैं। नीम लाइट मतलब कंप्लीट लाइट आप उसके गो थ्रू नहीं होती। इक्लिप्स हमारे पास क्या है? टोटल और पार्शियल डिसअपीयरेंस ऑफ द सन और द मून। इक्लिप्स किसे कहते हैं? ग्रहण, चांद ग्रहण भी हो सकता है और सूरज ग्रहण भी। स्टार्स हमारे पास क्या है? एमिट देयर ओन लाइट, यानी स्टार्स की अपनी रोशनी होती है। पिन होल कैमरा, एग्जाम्पल ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, allow almost all the light to pass through, ठीक। fill in the blanks है। objects are classified into opaque, transparent and translucent on the basis of light properties, यानी light properties देखते हैं इन तीनों में, उसके लिहाज से हम इनको classified करते हैं। when an opaque object blocks the light, eclipse is formed, ग्रहण होने लगता है, ठीक है। ओपैक ऑब्जेक्ट जब भी लाइट के सामने आ जाए तो एक साया सा नमूदार हो जाता है नीचे। द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज सन, ऑब्वियसली। इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज अ रियल इमेज। व्हेन द डैश यानी अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून कैन बी सीन ऑन द मून, तो जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाए तो हमारा जो साया होता है ज़मीन का, यानी साया जो होता है वो मून पे पड़ता है, ठीक है।